اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ صدقت یا رب العالمین۔ حج کا موسم تھا۔ مصر سے آئے ہوئے ایک حاجی نے وہ جب حج ادا کیا، حج ادا کرنے کے بعد ان کی ملاقات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہوئی۔ اس حوالے سے جس کتاب کا میں نے انتخاب کیا ہے، ویسے تو یہ بہت ساری کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے، لیکن میں صرف صحیح بخاری کی روایات پہ اکتفا کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری میں یہ جو روایت ہے یہ کم از کم 3 بار آئی ہے، کبھی تفصیلی اور کبھی اجمالی۔ تو میرے سامنے اس وقت جو تفصیلی روایت ہے وہ روایت ہے 3495، یعنی حدیث نمبر 3495 حدیث نمبر۔ اور صحیح بخاری میں جو مین چیپٹر ہے وہ ہے کتاب و فضائل الصحابہ، اور اس میں جو سب چیپٹر ہے یعنی ذیلی باب ہے وہ ہے باب و مناقب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہم۔ ویسے دیگر جو 2 مقامات پہ صحیح بخاری شریف میں یہ روایت آئی ہے، تو اس میں ایک ہے کتاب الخمس، اور کتاب الخمس کے ذیلی باب میں باب اذا بعث الامام رسولا فی حاجتہ او امر بالمقام الی الاخرہ، اور یہ ہے 2962 صحیح بخاری میں۔ اور تیسرا صحیح بخاری کا کتاب المغازی باب قول اللہ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان الی الاخرہ، اور یہ ہے 3839 روایت نمبر 3839۔ صحیح بخاری میں یہ 3 مقامات پہ آئی ہے۔ امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے حج ادا کیا، اور حج ادا کرنے کے بعد وہ کیا کہتا ہے کہ اس نے دیکھا وہاں لوگ جمع ہیں، فرآ قوما جلوسا، لوگ جمع ہیں، تو اس نے دیکھا اور پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب ملا کہ یہ قریش جمع ہے، حج کا موسم تھا، قبیلہ قریش کے لوگ جمع تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ان کا شیخ کون ہے، یعنی ان میں سے بڑے کون ہیں، بزرگ کون ہیں؟ تو بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ ان کے شیخ ہیں، اس وقت اس مجمع میں، اس گیدرنگ میں وہ بڑے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ شخص آیا اور کہتا ہے کہ میں نے آپ سے کچھ سوال کرنے ہیں، میں سوال کرنے والا ہوں، تو پلیز آپ مجھے جواب دیں، فحدثنی، مجھے ان باتوں کا جواب دیں۔ تو پہلا سوال اس کا یہ تھا کہ کیا آپ جانتے ہیں حل تعلم ان عثمان فر یوم احد، اے عبداللہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مقام احد سے ادھر ادھر ہو گئے تھے جب عین لڑائی ہو رہی تھی، اور جب بڑا مشکل وقت آیا تھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی جگہ پہ ڈٹ کے کھڑے نہیں ہو سکے، کیا آپ جانتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب ارشاد فرمایا، قال نعم، ہاں میں جانتا ہوں۔ دوسرا سوال وہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ تعلم ان تغیب عن بدر ولم یشہد، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بدر کے مقام پہ بھی حاضر نہیں تھے، وہاں سے بھی وہ غائب تھے اس دن، یعنی ہجرت کے دوسرے سال جو بدر کے مقام پہ، جو کہ مدینہ طیبہ سے تقریباً وہ 80 میل کے فاصلے پہ ہے، تو وہاں آپ نے دیکھا، آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی جب شدید ضرورت تھی مجاہدین کی تو وہاں بھی نہیں گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب ارشاد فرمایا، قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ کیا آپ جانتے ہیں تعلم ان تغیب عن بیعت الرضوان فلم یشہدھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ جو بیعت رضوان ہوئی تھی
उसमें भी वो गायब थे, उसमें भी मौजूद नहीं थे। तो आपने फरमाया हाँ मैं जानता हूँ। जब उसने 3 सवालात कर लिए तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आपने जवाब दिए तो वो कहता है अल्लाह अकबर। तो हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया ताला उबय्यन लक, अब मेरे करीब आओ, आज़रा मतन दसा वो क्यों वहाँ नहीं थे और क्यों वहाँ नहीं थे और क्यों वहाँ नहीं थे। आपने 3 जो मकामात का तज़किरा किया है, क्यों गायब थे, किथे गए सी, ज़रा नेड़े हो, मैं आपको बताता हूँ कि इशू क्या था, मसला क्या था। अब देखें मिस्री हाजी के सवालात हैं और जवाब है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के। अब जिस लोकेशन पे और जिस दौर में और जहाँ ये वाक़यात हुए वो लोग ही बेहतर जानते हैं। 15वीं सदी के लोग उस चीज़ को बेहतर नहीं जानते जिनके दौर में हुआ, या मतलब कि बिल्कुल फ्रेश ये वाक़यात थे तो वो जानते हैं ये क्या मामला है, वहीं के रहने वाले थे, वहीं मामला पेश आया। तो किसी भी जगह पे जो मामला कोई पेश आता है तो अगरचे हम प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आज भी अगर हम दूर से मतलब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ जो मकामी लोग हैं मीडिया वाले भी उनसे बात करते हैं कि हाँ भाई क्या सिचुएशन है, तो बताते हैं जी ये हो गया वो हो गया। तो अब मिस्री पूछ रहे हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से कि ये क्या माजरा है। तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने ये जवाब दिया, ये मैंने पहले रेफरेंस कोट कर दिया है कि हदीस नंबर सही बुखारी में 3495 है। तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप जवाब देते हैं कि यहाँ तक मकाम ओहद से इधर उधर होने की बात है, स्लिप होने की बात है, वहाँ जो ऐसी सिचुएशन आ गई थी, ऐसी कैफियत थी, कंडीशन थी, तो इधर उधर हुए। तो फरमाया कि फ़अशहदु अन्नल्लाह अफ़ा अन्हु व गफ़र लह। हज़रत अब्दुल्ला सहाबी फरमाते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ने उन्हें मुआफ़ फरमा दिया। ये जो लग़ज़िश थी, वो जो एक वक्ती जो एक सिचुएशन बनी थी, अगर आप इधर उधर हुए हैं तो वो कोई आप इरादे के तौर पे या आपको परमानेंटली आप चले नहीं गए, वहाँ एक खलबली सी मच गई थी, तो अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया और उनकी बख्शिश फरमा दी। तो सवाल ये है कि ये पकड़ करने वाला कौन है, यानी अगर कोई ऐसा मामला हुआ है जैसा कि इस रिवायत में जिक्र है, तो ये मैदान जिहाद से इधर उधर होना, इसका एहतिसाब कौन करने वाला है? वो अल्लाह है। जिसने पूछना था, जिसने पकड़ना था, उसने माफ़ कर दिया। इस रिवायत की जो बुनियाद है वो आप ज़रा देखें, सूरत आल इमरान आयत नंबर 155, यानी जो आयत नंबर 155 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस स्लिप होने का तज़किरा किया और आखिरी जो अल्फाज हैं कुरान हकीम के वो ये हैं वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ने उन सब को माफ़ फरमा दिया। तो भाई आप कौन है पूछने वाले? मैं कौन हूँ पूछने वाला? अल्लाह ने माफ़ फरमा दिया। जिसे अल्लाह छोड़ देता है उसे कौन पकड़ सकता है? हिसाब अल्लाह ने लेना है या हमने लेना है? और ये जो लोग हैं, इनकी हर बंदे की गुड बुक में शामिल होना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई वाजिब नहीं है। मैं आप लोगों की गुड बुक में शामिल नहीं हूं तो क्या हुआ? आप मेरी गुड बुक में शामिल नहीं तो क्या हुआ? अगर हमारा तुम्हारा गुजारा हो सकता है दूसरे की गुड बुक में शामिल ना होने की वजह से, तो वो सहाबी हैं और जिनके लिए नस्से कतई आ गई उन सहाबा के लिए कि अल्लाह ने माफ़ किया है। ये आगे पूरे कलिमात पढ़े ना, और आगे अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह गफूरुन हलीम, बेशक अल्लाह मग़फ़िरत फरमाने वाला, बुर्दबारी फरमाने वाला है। अल्लाह ने माफ़ फरमा दिया। अल्लाह ने तो पकड़ की नहीं है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर उसमें शामिल हैं जैसा कि रिवायत है, तो अल्लाह ने तो फिर वो छोड़ दिया है। वो अल्लाह ने छोड़ दिया तो आपको भी छोड़ना पड़ेगा। जिसे अल्लाह माफ़ फरमा देता है आप उसे सज़ा नहीं दे सकते। जिसे अल्लाह माफ़ फरमा देता है आप उसे पकड़ नहीं सकते। हिसाब आपने नहीं लेना, हिसाब अल्लाह ने लेना है। तो दूसरा जवाब ये था जो मैं हदीस का जिसका तज़किरा कर रहा हूँ और जिसको मदार बना के और बुनियाद बना के आज का ये मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि मकाम बद्र पे क्यों नहीं आए थे? इसलिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी हज़रत रुक़ैया वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में थी
وہ उस वक्त जिंदा हयात थी, लेकिन हदीस में ये रिवायत में ये कलिमात हैं, वकानत मरीज़ा, वो बीमार थी, मरीज़ा थी। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, इन्ना लका अज्र रजुल मिम्मन शाहिदा बद्र व सहमा, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आपके लिए, यानी आप खबरगिरी करें अपनी बीवी की, मेरी शहजादी की, आप तीमारदारी करें, निगरानी करें, आपके लिए इतना ही अजर है जितना कि उस शख्स के लिए अजर है जो बद्र की जंग में, जिहाद में जो शामिल हो रहा है या होगा, और जितना उसका हिस्सा होगा आपके लिए भी इतना हिस्सा है। बैठे मदीने में हैं, सरकार का फैसला है, मदीने में बैठे हैं, लेकिन बदरी साहबा का मकाम पाएंगे और बदरी साहबा के जो गनाइम में से जो हिस्से वो भी पाएंगे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शामिल कर लिया कि नहीं? कर लिया, हिस्सा भी दिया और प्रैक्टिकली बाद में हिस्सा भी अता फरमाया। तो आपने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपको अपने हुक्म से मदीने ठहराया, और रीजन भी है रिवायत में, जैसा कि मैंने अर्ज कर दी। तो ये भी क्लियर हो गया। अब तीसरा उस मिस्री हाजी का ये सवाल था कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप बैअत रिज़वान में शामिल नहीं हुए। तो अगर बैअत रिज़वान का पस मंज़र देखा जाए तो वो थोड़ा सा इजमाली तौर पे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आपने बयान कर दिया। आपने ये फरमाया कि जो उनके वहाँ से गैर हाजिर होने का मामला है, तो वो ये है कि अगर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की निस्बत वहाँ कोई और आपसे यानी बढ़कर कोई मुअज़्ज़ज़ शख्स होता तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको भेजते। बतने मक्का में अगर आपसे कोई बढ़कर आदमी होता कुरैश से बात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, सफारतकारी के लिए, तो आप उसको भेजते। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को भेजा। वहाँ जब गए और ये अफवाह उड़ गई, यहाँ तो इजमाली है, इसकी तफसील जो मुख्तलिफ कुतुब में है, वहाँ एक अफवाह उड़ गई कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया है। तो इसी बात पे तो बैअत रिज़वान हुई थी, यानी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया और हमने इंतकाम लेना है, यही तो उसका मौजू था, यही तो टॉपिक था। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खून के लिए, किसास के लिए जो बैअत हुई थी, तो वहाँ तकरीबन 1400 सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जो बैअत कर रहे थे, तो इसी बात पे कर रहे थे कि खून उस्मान लेना है। तो हजरत उस्मान वहाँ कैसे होते हैं? उनके तो खून का किसास लेने के लिए ही बैअत हो रही थी। तो हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि ये हजरत उस्मान के जाने के बाद ये जो हुआ ना, ये बैअत वाला मामला, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया? फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियदिहिल यमना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना सीधा हाथ, दायां हाथ जो है, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नॉमिनेट फरमाया और फरमाया हाज़िही यद उस्मान, फरमाया ये उस्मान का हाथ है। सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना दायां हाथ वो फैलाया और आगे बढ़ाया और सामने किया और फरमाया ये उस्मान का हाथ है। फदारब बिहा अला यदिही, और फिर दूसरा हाथ जो है वो उस हाथ पे दिया और फरमाया हाज़िही ले उस्मान, पहला उस्मान का हाथ है, दूसरा उस्मान के लिए हाथ है। सुभान अल्लाह। एक जो दायां हाथ है वो हजरत उस्मान गनी का हाथ करार दे दिया, और जो लेफ्ट हैंड है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, वो हजरत उस्मान गनी के लिए करार दे दिया। यानी ये उस्मान का हाथ है और ये हजरत उस्मान के लिए है। आपने दोनों हाथों को मिलाया और वहाँ सहाबा किराम को दिखलाया क्या कि ये उस्मान की तरफ से बैअत हो गई, हुजूर उस्मान की तरफ से बैअत ले रहे हैं, अपने हाथ पर, अपने हाथ से हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए बैअत ले रहे हैं। जब ये तीनों सवालात के जवाबात हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने दे दिए, अब सवालात मिस्री हाजी के हैं, जवाब मदनी सहाबी के हैं, हजरत फारूक आजम के शहजादे के हैं, एक मुहद्दिस के हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी के हैं। तो फिर जब आपने ये जवाबात दे दिए तो आपने फरमाया इज़हब बिहल आन माका, अब इनको साथ ले जाइए, यानी इन जवाबात को, इन तफसीलात को
اب ساتھ لے جائیے۔ کیوں ساتھ لے جائیے؟ ان کو ایک تو آپ ذے نشیں کر لیں، ایک یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ذے نشیں کر لیں، دوسرا یہ کہ جہاں ضرورت پڑے، جیسے وہ تحریر لکھی جاتی ہے نا کہ تحریر لکھ دی گئی ہے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے، تو یہ آپ نے سمجھا دیا، پڑھا دیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری باتیں ان کو کلیئر کر کے سمجھا دیں اور فرمایا اب ساتھ لے جاؤ تاکہ کام آئے گا۔